یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم آئے ہیں در پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. ناظرین کرام، اس وقت میں موجود ہوں بدھ کی بارگاہ میں، اور یہ پروگرام مسلسل ہم قائم ٹی وی پر آپ دیکھنے کے اور ناظرین کی نشر کرتے ہیں. یہ خاص بارگاہ ہے جہاں پر تمام آپ کی حاجات پوری ہوتی ہیں، اور لوگ مسلسل یہاں پر سالوں سے اس بارگاہ میں آ رہے ہیں بغیر کسی رکے، بغیر کسی عذر کے، اور کہتے ہیں یہاں پر جو ایک دلی سکون ہے وہ کہیں نہیں ملتا. اور یہ دو رکعت نماز جو ہے بدھ کی بارگاہ کی، اور ایک تسبیح جو کہ ایک مجرب تسبیح ہے، مجرب عمل ہے، آپ اپنی تمام حاجات پوری کرا سکتے ہیں. صدقہ امام موسی کاظم علیہ السلام بارگاہ میں آپ دعا کیجیے اور انشاءاللہ آپ تمام حاجات پوری ہوں گی. ہم آپ کو مسلسل لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کب سے اس بارگاہ میں آ رہے ہیں اور کیا ان کی عقیدت ہے، کیا ان کو یہاں سے اس بارگاہ سے ملا. تو بہت سارے لوگ اپنی الگ الگ باتوں کو شیئر کرتے ہیں. آئیے چلتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ کب سے اس بارگاہ میں آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ کب سے جاری ہے ان کا. آئیے آپ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. کیا نہیں جی، اس وقت ہمارے ساتھ بدھ کی بارگاہ میں مسلسل آنے والے مرتضیٰ موجود ہیں، اور آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ ان کا کب سے شروع ہوا اور پہلی دفعہ جو آئے تو کیسا ان کا اتفاق تھا یہاں پر آنے کا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا سیدی یا مولائی یا باب الحوائج موسی ابن جعفر ادرکنی ادرکنی ادرکنی. یقیناً ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہیں، تو اور اس بدھ کی امام بارگاہ میں، کیونکہ خصوصاً بدھ کا دن امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ دن ہے. بے شک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تو اس بارگاہ میں لوگ باب الحوائج کی بارگاہ میں آتے ہیں اپنی جھولیاں بھرنے کے لیے، اپنی مرادیں لے کر. اور ہم بھی انہی زائرین کی، انہی جو ہے وہ سائلوں کی فہرست میں ہو کر امام موسی کاظم کی بارگاہ میں ہر بدھ کے دن حاضری بھرتے ہیں اور اپنی دعائیں امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ پروردگار ان کے صدقے میں ہماری تمام پریشانیوں اور مشکلات کو دور فرمائے، اور تمام ازداران مظلوم کربلا کی پریشانیوں اور مشکلات کو دور فرمائے. اور یقیناً ایک روحانیت کا، ایک نور کا سلسلہ ہے جو اس بارگاہ میں ہے، اور تمام زائرین، ہزاروں کی تعداد میں زائرین صبح سے لے کر رات گئے تک یہاں پہ مسلسل آتے ہیں، اور جو ہے وہ اپنی حاجات، اپنی دعائیں باب الحوائج کی بارگاہ میں رکھتے ہیں. پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور میری تو یہی التجا ہے، دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور آنکھوں کو دکھا روضہ مظلوم کا منظر، قدموں کو نجف تک بھی کبھی اذن سفر دے. اچھا، کب سے مرتضیٰ یہ آنا کب سے شروع کیا؟ کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ 1 سال ہو گیا مجھے. یہاں پہ جاب میری یہیں قریب میں ہے، تو میں کنٹینیوسلی 1 سال سے ہوں. اس سے پہلے بھی کبھی آنا ہوتا تھا، پھر کبھی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جب پریشانی کو لاحق ہوتی ہے تو ہم لوگ پھر ریگولر ادھر بدھ کی امام بارگاہ میں آنا شروع کرتے ہیں، یا قریب کے کسی امام بارگاہ میں جمعرات جیسے زیارت کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ شب جمعہ ایک بڑی فضیلت رکھتا ہے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستگی کا دن ہے. تو اسی طریقے سے بدھ کا دن امام موسی کاظم کی بارگاہ کا ہے. تو اکثر پریشانیوں میں جب مبتلا ہوتے تھے تو ہم اسی بارگاہ کا رخ کرتے تھے، اور اس بارگاہ سے ہمیں فیضیاب ہوتے تھے اور تمام حاجات ہماری پوری ہوتی. ماشاءاللہ سے سلسلہ آپ کی بہترین طریقے سے. شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. خاص دن ہے بدھ کا، خاص بدھ کا دن ہے، اور ہماری سب کی یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمیں جلد از جلد امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی زیارت نصیب. الہی آمین. آپ کی دعا قبول ہو، ساتھ میں ہمیں بھی زیارت جلد سے جلد نصیب ہو. الہی آمین. سید محمد علی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. آئیے جانتے ہیں ان سے کہ وہ اس بارگاہ میں کب سے آ رہے ہیں، اور پہلی دفعہ جو آئے تو کوئی خاص دعا تھی یا کسی نے بتایا تھا، یا اب تک جو سلسلہ ہے کب سے جاری ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ مجھ سے سعادت دی کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں امام مولا موسی کاظم کے بارے میں، اس امام بارگاہ کے بارے میں. تو ہاں، میں کسی دور میں بہت پریشان ہوا کرتا تھا روزی کے لحاظ سے، کام کے لحاظ سے. تو کسی نے مجھے کہا تھا کہ آپ بہادرآباد جاؤ، بدھ امام بارگاہ، آپ 7 بدھ کرو، باب الحوائج ہیں وہ.
تو ان کے وسیلے جو ہے نا بہت کچھ ہوتا ہے. تو میں نے اسی طرح اس کو کنٹینیو کیا اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ میرا بہت بدلاؤ آیا, جس کے بعد آج میں جب بھی یہاں آتا ہوں اور سکون پاتا ہوں مولا کے در پہ. اب بھی باب الحوائج ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ مولا امام موسیٰ کاظم. ہاں, میرا عقیدہ ہے کہ جو بھی شخص دل سے آئے اور باب الحوائج کے صدقے مانگے, دے گا رب میرا, لیکن دے گا وہ باب الحوائج کے صدقے ضرور قبول کرے گا. تو میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ جب بھی پریشان ہو در باب الحوائج کھلائیں, آپ آئیں اور دل کی مرادیں پائیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سکون ملے گا زندگی میں. بہت کچھ آسانیاں پیدا ہوئی ہیں میرے لیے, بہت آسانیاں پیدا. تو یہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو آتے ہوئے؟ مجھے آتے ہوئے یہاں پر کم از کم 8 سال ہو گئے. 8 سال سے الحمدللہ میں آتا ہوں. مرادیں پوری, یعنی جو خواہشات پوری بھی ہو گئی تو پھر بھی میں آتا ہوں سکون کے لیے, تسلی کے لیے. میں سارے کام چھوڑ کے, کل تک میں نوکری کیا کرتا تھا, آج مولا پروردگار ان کے صدقے یا کسی کے بھی صدقے میرا اپنا کام ہو گیا ہے. اور اب میں بس وہ کام 4-5 بجے 6 بجے میرا پلان ہوتا ہے, بدھ والے دن مجھے وہاں جانا ہے باب الحوائج کا, حاضری دینی ہے, نماز پڑھنی ہے, اور میں یہاں آتا ہوں. سبحان اللہ, سلامت رہیے اور اسی طرح آپ اپنی دعاؤں کو پورا کراتے رہیے. مولا آپ کا اس کا سلسلہ جاری رکھے اور آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں, قائم ٹی وی کو بھی یاد رکھیں. جی, آپ کا نام؟ محمد علی. جی, اس وقت محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بدھ کی بارگاہ میں زیارت کے لیے آئے ہیں. آئیے جانتے ہیں ان سے کہ کتنے عرصے سے آپ اس بدھ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور کیسے آئے. پہلے مجھے تو کافی ٹائم ہو گیا, تقریباً 30 سال ہو گئے ہوں گے, 30 ایئرس. ماشاء اللہ, ریگولر مسلسل. ہاں, میری یہاں رہائش میری یہیں پہ نزدیک میں آوانتی میں, تو آتے رہتے ہم لوگ. اللہ شکر. تو اب فیملی آتی ہے صرف؟ ہاں, نہیں, فیملی بھی لے کے آتا ہوں میں. اچھا. کبھی ابھی میں نماز پڑھ کے محفل ملکی آیا, اچھا, میں نے کہا چلو میں چلے جاؤں. تو ریگولر ہر بدھ کو آتے ہیں؟ ہاں, تقریباً. تو کوشش کرتا ہوں میں ریگولر آنے. تو پہلی دفعہ جب آئے تھے تو کوئی خاص دعا تھی یا کوئی خاص تھا؟ ہاں, نہیں, مطلب بھائی وہ بیٹیوں کے لیے, اور یہ کبھی مکان کا پروگرام مطلب کچھ ہوتا ہے نا, تو بس دعا پوری ہوتی چلی. ہاں, الحمدللہ, شکر ہے. یہ جتنا شکر کر. بالکل, میں لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہوتا ہوں کہ یہ خاص بارگاہ ہے جہاں سے انسان خالی ہاتھ نہیں جاتا. نہیں, الحمدللہ, شکر ہے. 7 سے پہلے ہی ہو جاتا کام. 7 بدھ کہتے ہیں نا سب لوگ. جی, 7 امام میں تو 7 بدھ ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ مولا کا خاص کرم ہے کہ 7 بدھ سے ہی پہلے لوگوں کے سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو چلیں, آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. قائم ٹی وی دیکھتے رہیے. اس وقت ہمارے ساتھ بدھ کی بارگاہ میں آنے والے زائر سلمان موجود ہیں اور آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کب سے اس بارگاہ میں آ رہے ہیں اور پہلی دفعہ جب آئے تو کیسے سلسلہ شروع ہوا اس بارگاہ میں آنے کا. جی سلمان. وعلیکم السلام. پہلے بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. ویسے تو ہم اس جگہ کو بی بی جان کے ٹائم سے جانتے ہیں, اور جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہمارے والد لے کے آتے تھے ہمیں, اور یہ سلسلہ سمجھ لیں تقریباً پچھلے 30 سالوں سے چل رہا ہے. پھر ہم نے جب ہوش سنبھالا پھر ہم خود آنے لگ گئے. والد بزرگ ہو گئے, پھر ان کا انتقال ہو گیا 2012 میں. تب سے بھی ہم مطلب کنٹینیو آ رہے ہیں, اور وہ روایت جو والد صاحب کی تھی اس کو ہم نے قائم رکھا ہوا ہے. اور بہت سی منتیں مرادیں جو آتی ہیں اسی طرح سے ہم بھی اپنی بہت سی منتیں مرادیں لے کے آتے ہیں, اور ماشاءاللہ پوری ہوتی ہیں. اور یہ اعجاز ہے اس در کا کہ اس در کی ہستیاں وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے خاص طور پہ چنا ہے ہم انسانوں کے لیے. اور اگر آپ کا مکمل اور کامل یقین ہے اللہ کی ذات پہ اور اس کے بنائے ہوئے قانون اور پورے اس نظام پہ جس کی تحت اس پروردگار نے نبی خدا رحمۃ اللہ عالمین کو ہمارے درمیان بھیجا, اگر آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں تو اس سے بہتر در اور کوئی نہیں ہوگا. تو کیسا محسوس کرتے ہیں آنے کے بعد, کیونکہ یہ خاص کہتے ہیں لوگ سکون والی جگہ ہے. دیکھیں, یہ اور اس طرح کی وہ تمام طرح چیزیں جو آپ کو میسر ہیں, اگر آپ ان مقدس مقامات پہ نہیں جا سکتے جو کہ آپ کے وطن سے دور ہیں, تو یہ وہی مقامات ہیں جو ان سے نسبت رکھتی ہیں, اور نسبتیں ہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو آپ کی منزلوں کی طرف لے کے چلتی ہیں. دیر سویر ہر چیز میں ہے, لیکن یہ وہ نسبتیں ہیں جو کہ آئمہ سے اور پھر آئمہ کے بعد وہ رسول خدا سے بالکل ویسی جڑی ہیں جیسے وہ حوض کوثر تک جائیں گے تو اہل بیت اور رسول خدا خود چل کے حوض کوثر تک اکٹھے جائیں گے ساتھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سلامت رہیے سلمان, اور آپ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. ہمیں اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیں, قائم ٹی وی کو بھی, ہمارے ناظرین کو بھی. یہ خاص میسیج ہے کیونکہ میں اس بدھ کا پروگرام روز ہر بدھ کو کرنے کا مقصد یہی ہے کیونکہ یہ لوگوں کو اس جگہ کی, اس بارگاہ کی آگاہی ہو کہ یہ کیا چیز ہے, اور یہ کراچی والوں کے لیے کیسا تحفہ ہے کہ انسان جب یہاں پریشانی میں آتا ہے. تو کیسا آپ اس بارے میں کیا کچھ میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, خالی یہ محبان اہل بیت مطلب خالی اہل تشیعوں تک
कहते हैं ना ऐसे आप लिमिटेड नहीं है, इसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि आप के मसलक से हटके हैं लेकिन वो भी आते हैं, और कुछ उसमें से मेरे ख़ास तौर पे दोस्त हैं जो कि काफ़ी निस्बत रखते हैं, उनकी काफ़ी उनसी समझ लें कुर्बत है ख़ानदान अहल बैत से, तो वो भी आते हैं और वो भी इन चीज़ों को मानते हैं, और काफ़ी तर उनकी भी दुआएं मनाजात और जितनी भी हाजात हैं शरई वो कबूल होती हैं, तो वो उनकी भी समझ लें एक दिल से उनसीयत है कि वो इनसे जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें न सिर्फ कराची वालों के लिए बल्कि तमाम तर पाकिस्तान में जहाँ भी ऐसे मुक़द्दस मकामात हैं जो कि आले रसूल से कनेक्टेड हैं और उनकी नस्लों से हैं मंसूब हैं, तो उनकी हर दरगाह पे जाना चाहिए। या सैयदी या मौलाई या मूसी काज़िम या बाबुल हवाइज मेरे या मूसी काज़िम, आए हैं दर पे आपके हम बन के सवाली, आए हैं दर पे आपके हम बन के सवाली, है सबको यकी कोई भी फेरा नहीं खाली, या सैयदी या मौलाई या मूसी काज़िम या बाबुल हवाइज मेरे या मूसी काज़िम। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बुद्ध की बारगाह में मुबीन फ़ातिमा साहिबा और उनकी साहबजादी हैं, बेटी हैं। आइए जानते हैं उनसे कि वो मुसलसल कब से इस बारगाह में आ रही हैं और आज ख़ास मिठाई भी लेकर आई हैं, तो क्या सिलसिला है, क्योंकि ये बारगाह ऐसी ख़ास है कि जो भी यहाँ आता है वो अपनी ज़रूर हाजात पूरी करा के जाता है। तो कब से आ रही हैं और अपनी सब सारे ख़ानदान को लेकर आती हैं माशाल्लाह से, थोड़ा सा इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आप कब से आ रही हैं, कब से बुद्ध की बारगाह में आ रही हैं? यहाँ इमाम बारगाह में आप कब से आ रही हैं? हाँ, जाते हैं दुआ मांगते हैं। अच्छा, तो अब आप मुझे थोड़ा सा आप अम्मी की तरफ से बताइए कि अम्मी कितने अरसे से आ रही हैं और आप सब? ये अरसे जब से हम हैं छोटे से थे फिर बड़े हुए, ज़ाहिर है अम्मी हमारी वालदा हमें लेकर आती हैं इमाम बारगाह में, दुआएं मांगते हैं, तस्बीहात नमाज़ पढ़ते हैं और फिर ज़ाहिर मौला हमारी हाजतों को कबूल करते हैं। तो ये बुद्ध की बारगाह में माशाल्लाह से ये आपको कितना काफ़ी साल हो चुके हैं अपनी फैमिली के साथ? जी 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 माशाल्लाह से बच्चे जी 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 ऐसे ही जी 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 बिल्कुल। तो माशाल्लाह से बुद्ध का दिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पर आके जो सुकून और जो राहत मिलती है, सुकून मिलता है, वो बहुत अच्छा लगता है, और नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, तस्बीहात पढ़ी जाती हैं, अपनी हाजतें पूरी करते हैं, सबकी दुआएं कबूल होती हैं, और अपने अल्लाह ताला से मौला से अपने गुनाहों की तौबा भी करते हैं, हम माफ़ी भी मांगते हैं, और हमें अपने दर से खाली नहीं भेजते। ये मौला का बड़ा करम है, एहसान है कि हमारी हाजतों को कबूल कर। आज कोई ख़ास दुआ लेकर आई थी या वो पूरी हुई है मन्नत या ऐसी? नहीं, हम दुआ मांगने के लिए आए हैं आज। अच्छा, हाँ, तो सब माशाल्लाह से पूरी फैमिली? जी 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 बिल्कुल। चलिए, अल्लाह में आपकी तमाम हाजात पूरी कराएं और आप हमें दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ज़ीशान हुसैन साहब और उनकी मिसेज़ मौजूद हैं, और आइए जानते हैं उनसे कि वो इस बारगाह में कब से आ रहे हैं और कैसे इत्तफ़ाक़ हुआ आने का, कितने बरस हो चुके हैं उनको यहाँ आते हुए, कोई ख़ास दुआ है जो उनको यहाँ तक लेकर आई? जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बस हमें अभी 2 हफ्ते हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला एक है हमारी दुआ, इंशाअल्लाह ताला वो मौला ज़रूर कबूल करेंगे इंशाअल्लाह, और हमें उम्मीद है पूरी ना, और इन्हीं के दर से हमें उम्मीद है, और इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल हमारी उम्मीद पूरी होगी इंशाअल्लाह। ये तो बिल्कुल, ये तो हर पे आखिर के बाद आपकी इंशाअल्लाह इस बहुत जल्द बुद्ध में पूरी हो जाएगी। तो जब मैं समझता हूँ कि मेरी तो खुद आजमाई भी चीज़ है, क्योंकि मैं सालों से आ रहा हूँ, तो जब बुद्ध की कोई दुआ कबूल होती है तो उसके ऊपर बुद्ध की मोहर लगती है, और वो बुद्ध के ही दिन काम होता है। ज़्यादातर जो काम यहाँ से होता है, यहाँ की दुआ पूरी होती है, अच्छा, वो ख़ास बुद्ध के दिन ही होती है, और बुद्ध के दिन की मोहर लग जाती है कि हाँ हमारी तरफ से हुई है। अच्छा, आपकी नॉलेज, आपने मुझे जो है नॉलेज दी है, मुझे नई चीज़ का इजाफा हुआ है, आप खुद बहुत अच्छा हुआ है, और ये खुद अच्छा आप पता चलेगा मुझे। आपको जी, आप ये खुद जब देखेंगे जब आपकी कोई दुआ जो आप लेकर आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपने तो मुझे बताई है अभी, लेकिन मैं पहले जब बुद्ध आया ना
तो मैंने बोला जो मेरा काम है ना वो बुध वाले दिन होगा। हाँ। यकीन करें मेरे दिल के अंदर यही था। बुध का दिन जो है ना जी, और ऐसे ही होता है कि जो मुसलसल जी, लेकिन मेरे दिल में था कि बुध वाले दिन ही होगा काम। और आप ही देखेंगे कि आप जैसे मुसलसल आते रहेंगे तो आपका बुध का दिन जो है आपका लकी डे हो जाएगा और आपकी तमाम जो मुश्किलें वो बुध के दिन हल हुआ करेंगी। ये ख़ास इस बुध की बारगाह का मौजज़ा है, ये मैं अपने बता रहा हूँ। और मैं आपसे भी कहूँगा कि आपने शायद यहाँ पर नोट भी है कि यहाँ पर ख़ास जो कि लेडीज़ में मिलता है, 10 रुपये का नोट वो देते हैं और ये भी वो बहुत ख़ास नोट है। आप 10 रुपये का नोट लें यहाँ से और वो मन्नत के तौर पे अपने पास रखें और इंशाल्लाह वो 10 का नोट भी इतनी जल्दी आपकी मन्नत को पूरा करता है। फिर जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो वो 10 का नोट आप यहाँ लाएँ और उसमें 500 रुपये शामिल करें। 50 नोट 10-10 के इनको देने होते हैं मन्नत पूरी होने के बाद, तो वो यहीं पे ही तकसीम होते हैं। वो जो खादमा है या जो ये आपको रेवड़ी हैं और ये जो दे रहे हैं यहाँ पर अगरबत्ती हैं, उनके पास से आप कहें कि हमें मन्नत के लिए 10 का नोट दीजिए, वो आप लेके जाएं। और वो इतना मुजर्रब नोट है कि मैंने कितने नोट बांटे मुझे नहीं पता वो, और हर बंदे की मन्नत पूरी हुई। तो आप जब यहाँ से आएँगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये जो तो मौला का दर है, अस्सलाम वालेकुम, ये मौला का दर है, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। ये तो आप मर गए वैसे भी, जहाँ जहाँ गाजी के आलम में जहाँ जहाँ बड़ी दरगाह है वहाँ से कोई खाली हाथ नहीं गया, क्योंकि ये बाबुल हवाइज हैं और इन्हें ख़ास बाबुल हवाइज है, बड़ी बात है। इस दरगाह में जो हज़ारों तस्बीहें पढ़ी जाती हैं सुबह फजर से लेके रात देर तक, तो ये उसका असर है कि आपकी तमाम हाजात तमाम और सुकून आपको ऐसा मिलता है, ज़हनी सुकून मिलता है ना। बहुत आपका शुक्रिया सर। इंशाल्लाह अब मैं यही आपको मिलूंगा जब आपकी दुआ पूरी होगी तो आप मुझे आके बताएंगे खबर होगी। ओके बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला आपको बताएंगे ज़रूर। सलामत रहिए। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ वक़ार साहब मौजूद हैं जो मुसलसल बुत की बारगाह में शायद आते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो कब से इस बारगाह में आ रहे हैं और कैसा महसूस करते हैं इस बारगाह में, क्योंकि लोग कहते हैं बहुत सुकून है। जी सर। जी वालेकुम सलाम। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ जब मैं क्लास 9th या 10th में था। अरे माशाअल्लाह। इट्स अबाउट 30-35 ईयर्स। माशाअल्लाह। और सुकून मिलता है, रूहानी बारगाह है बेशक, तो इसलिए आते हैं यहाँ पर। तो मुसलसल अपनी जो हाजात का सिलसिला है बुत की बारगाह से, बात हाजात की नहीं है, एक दिल का वो दिल का, हाँ मतलब एक सुकून है जो मतलब पूरे दुआ तो हम कहीं पे भी मार सकते हैं, लेकिन यहाँ आकर ज़रा सुकून मिलता है, सुकून मिलता है, रूहानी सुकून मिलता है। अच्छा, तो आप, मैं ये समझता हूँ कि अगर बुत की बारगाह का जो एक ख़ास एक दुआ पूरी होने का जो दिन है वो बोल है, ये भी एक रवायत है यहाँ पर कि 7 बुत को मुसलसल आएँ और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की जो तस्बीह है उसको अदा करें। जी मैं आप तो माशाल्लाह से बहुत अरसे से ड्यूटी कर रहे हैं ना यहाँ पर? 6 साल हो गया। 6 साल हो गए। 6 साल हो गया। मौला का करम है, परवरदिगार का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला हम लोगों को और सब पश्चिम को कामयाब करे। इलाही आमीन। रब्बिल आलमीन तुम लोगों को भी कामयाब करें। बहुत शुक्रिया। अभी सर मेरा बस थोड़ा सा मसला है, पालिश का आटे गए हुए, तो अभी 1.5 महीने हो गया मैं घर में पढ़ूँ, मगर मैं फिर भी इसके बावजूद मौला के दर पर आती हूँ। सेहत देने वाले वो, ये सेहत देने वाले हैं। बेशक बेशक। और आप देखिए मसले से खड़े हैं, आप फालिज के बावजूद आप यहाँ पर खड़े, बहुत बड़ा मौजज़ा है। और आपको क्योंकि ख़ास ड्यूटी है कि आप लोगों को यहाँ पर तरतीब करा रहे होते हैं, तो ये पार्किंग का ड्यूटी कराता है। आप सर मेरे को जानते हैं। जी जी जी। हम सैयद हैं, सैयद अली हुसैन मेरा नाम है। माशाल्लाह। ठीक है सर। जी जनाब। मौला आपको सलामत रखे। मौला तुम लोगों का और तौफीक दे कि मुल्क और लोगों का खिदमत करें। बिल्कुल इलाही आमीन। मौला पाकिस्तान को सलामत रखे। जी हमारे साथ इस वक्त फुरकान अली साहब मौजूद हैं जो कि मुसलसल बुत की बारगाह में आ रहे हैं, और आइए जानते हैं उनसे कि वो कब से इस बारगाह में आ रहे हैं और रूहानियत का एक सिलसिला है इस बारगाह में, और जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता, तो वो क्या कहते हैं इस बारे में, कैसा है? जी आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं यहाँ पे तकरीबन गुज़िश्ता 15-18 साल तो मेरे हो गए इस बारगाह पे आते हुए, और ऐसा नहीं है कि मुस्तकिल यहाँ पे आते हैं, लेकिन जब भी किसी किस्म की परेशानी वगैरह का ऐसा लाइफ में फेजेस आते हैं तो कभी उस सिलसिले में भी और कभी ऐसे भी एक रूहानी राब्ता होना चाहिए। हर दफ़ा ऐसा तो नहीं कि ज़रूरत पड़ने पे ये ज़रूर याद किया जाए, तो चलता रहता सिलसिला। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दर ऐसा है कि यहाँ से कभी भी खाली हाथ कोई भी नहीं लौटता, दुश्मन भी नहीं लौटता, तो हम बिल्कुल ज़बान से भी सही नाम तो लेते हैं। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि लोगों से मैंने ये भी सुना है और मेरे साथ ख़ुद भी ऐसा इत्तेफाक है कि जब बुत की बारगाह से कोई दुआ कबूल होती है तो ख़ास वो बुत का ही दिन स्टैम्प लगता है, वो ख़ास बुत का ही दिन होता है, और वो बहुत सारे लोगों के लिए लकी डे हो जाता है। ऐसा है?
एक दफ़ा मेरा ऐसा इत्तेफाक हुआ है, एक से ज़्यादा दफ़ा मैंने ऑब्ज़र्व नहीं किया, लेकिन एक दफ़ा मैंने ऑब्ज़र्व इसलिए किया है कि मैं शायद तकरीबन 2006 की बात है, और उस वक्त मैं इसी तरीके से जॉब वगैरह के मसाइल के लिए काफ़ी परेशान था, और मैं 7वां बुध था मेरा, और मैं यहाँ बाहर निकला था और मुझे कॉल आई थी, और उसके बाद मैं दुबई चला गया था और तकरीबन 2017 तक वहीं रहा था। 10-11 साल वहीं पे मेरे गुजारे, और काफ़ी अच्छा सिलसिला रहा। तो वो एक मेरे यादगार है कि मैं यहाँ से आया था और बाहर आते ही मुझे ये मौला के तवस्सुल से खुशखबरी मिली। तो ऐसा इत्तेफाक एक दफ़ा हुआ। ये ख़ास दर है, और आप उसमें हमें भी दुआ में याद रखें, कायम टीवी के तमाम देखने वाले नाज़रीन को, और आप हमारी दुआ में बिल्कुल मोहताज है दुआ। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अली हुसैन साहब और उनकी पूरी फैमिली मौजूद है, जो कि आज ज़ियारत के लिए और ख़ास दुआ के लिए आई है। तो हमारी भी इनकी इतनी दुआ है कि परवरदिगार आलम इनकी तमाम हाजात पूरी करें। आइए जानते हैं कि कब से इस बारगाह को जानते हैं, क्योंकि ये बारगाह एक ऐसी रूहानियत का मरकज़ है कि जो भी आता है ख़ास अपनी दुआओं को पूरा करा के जाता है। तो जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कब से ये आपका आने का इत्तेफाक? काफ़ी टाइम से है, मतलब 15-20 साल से माथे, बीच में कभी कभी वक्फा हो जाता है तो नहीं आ सके तो नहीं। ये कोई ख़ास दुआ हुई तो फिर आपने आना है? नहीं, हर दुआ का यहाँ आते हैं, मांगते हैं, जो भी आए उसके लिए दुआएं कबूल होती हैं। 7 बुध का भी मानते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा कबूल होती है। वैसे भी 1 बुध का भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ज़्यादा, तो 1 बुध को भी आते हैं, दुआएं माशाल्लाह बहुत कबूल होती हैं। यहाँ पे 7वें इमाम के का रोज़ा है ये, और उसके वसीले से इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होती है। आप मुसलसल काफ़ी टाइम ये कि अकीदा होना चाहिए, अकीदा सच्चा होना चाहिए इंसान का। ये हर चीज़ में बिल्कुल बिल्कुल कि आप जो भी दुआ करें वो दिल से करें, और मौला को सुन रहे हैं, अल्लाह सुन रहे हैं उनके वसीले से। तो ये आपका कितना, मतलब काफ़ी टाइम आपको भी इसी तरह होता है? जी, हम लोग काफ़ी टाइम से पहले आते थे, काफ़ी आते थे। आजकल अभी थोड़ा कम हो गया है ना, अच्छा, मसरूफियात की वजह से कुछ। तो कभी लेकिन तस्बीह ऐसा होते लोग घरों से घर में पढ़ रहे होते, बुध का दिन आता है। हम हर बुध को पढ़ते हैं माशाल्लाह, हर बुध को पढ़ती हूँ, और माशाल्लाह बहुत फलती है। कबूल करने वाला तो वो ऊपर वाला ही है, बेशक। सबके लिए ये दुआ करते हैं, यही तरीका है हमारे पास, बाकी इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। बेशक, जब तक ज़िंदगी दी अल्लाह ने, इंशाल्लाह आते रहते हैं। बिल्कुल, आप सलामत रहिए और आते रहिए, हमें दुआओं में याद रखिए कायम टीवी को। बहुत शुक्रिया। दुआ अल्लाह सबको अपने मान में रखे, सलामत। बहुत शुक्रिया। बाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बुध की बारगाह में अभी ज़ियारत करके वापस निकल रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि वो भी मुसलसल काफ़ी टाइम से आ रहे होंगे, या पहला बुध होगा, क्या इनका सिलसिला है ज़ियारत का, और कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि एक ये ऐसी जगह है कि जब इंसान आता है तो यहाँ बहुत सुकून। वालेकुम अस्सलाम यानी मदद। मुझे नहीं याद है कि मैं कब से यहाँ आ रहा हूँ। अच्छा। और ये कि शाद व नादिर कोई बुध मिस हुआ होता है तो उस दिन तबीयत बड़ी अजीब सी कैफियत हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन ये करीम अपने करीम का सराहना है, दर है, तो ये भी समझते हैं मजबूरी वगैरह। बहुत ख़ास जब होता है जब इंसान मिस हो जाता है। तो बस ये है कि जब परेशानियों में और तमाम मुश्किलात में और दुनियावी मसाइल लेकर आते हैं कि जो कि नामुमकिनात में से होते हैं, लेकिन जब इस दर से गुजरते हैं तो दिल इतना हल्का होता है और ज़हन इतना हल्का होता है कि मतलब अल्फाज नहीं है। तो माशाल्लाह से ज़माने से काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। और पूरी फैमिली आती है? मतलब मैं रेगुलर हूँ। अच्छा। अब फैमिली पे ये ऐसे मामलात है कि मैंने उन पे छोड़ दिया। आना हो तो आओ, नहीं आना हो तो नहीं आओ, तुम्हारी मर्ज़ी, जो आएगा वो पाएगा। लेकिन ये है कि मैं चाहे कभी बाज़ मरतबा ऐसा भी हुआ है कि देर सवेर हो जाती है, दरवाज़ा बंद भी तो लेकिन आता ज़रूर हूँ मैं, तस्बीह पढ़ के चले गए, बाहर से खड़े होकर, क्योंकि दिल को सुकून होता है कि हम दरवाजे पे ही चाहे। और एक मज़े की बात बताऊँ जी, कि मैं कुछ ऐसे अहले सुन्नत बरादरान को जानता हूँ कि जो पहले मिलना तक पसंद नहीं करते, मतलब मिलने से मुराद बातचीत करना, साथ खाना पीना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब मैं अक्सर उनको यहाँ देख पाता हूँ। वाह। तो बेशक ये इस दर का सदका है, ये मौज़ा है, क्योंकि ये करीम अपने करीम का घराना है, हर एक के लिए खुला है। बेशक बेशक। तो बस जो आता है वो यहाँ से पाके जाता है, मतलब ये जो दूर है वो बदकिस्मत है कि वो दूर है, लेकिन जो आ रहा है वो मुसलसल पा रहा है। तो ये मेरे बुध के प्रोग्राम का यही हासिल है कि मैं लोगों को मैसेज दे रहा हूँ कि वो ख़ास जगह है कि जो इंसान आता है तो खाली हाथ नहीं लौटता, तमाम अपनी मुश्किलों को यहीं छोड़ जाता है पूरे हफ्ते के लिए। ऐसा ही है? ऐसा ही है। सलामत है। ये बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। बुध की बारगाह में मुझे कम से कम 30-40 साल हो गए।
20 सारे साल माशाल्लाह। जी। तो आप सारे बच्चे और सबको साथ लेकर? सब हम मेरी बेटी है मेरे साथ, मेरी पोती है मेरे साथ। अच्छा। हमेशा आते रहती हूँ। अच्छा जी। तो ख़ास दुआओं का सिलसिला है और या मतलब बस मुसलसल आना है बस? नहीं, देखें दुआ तो मौला आपके दिल में हो और नीयत हो, कबूल करने वाले हैं। लेकिन एक जगह और एक मुकर्रर कर दी जाती है, तो वहाँ बैठ के कुछ अमल बैठ के पढ़ लिए जाते हैं, कर लिए जाते हैं। तो उसमें 4 के मिल के जो होता है, आपकी दुआ में असर है, मेरी में नहीं है। बिल्कुल, ये खास दर है, खास बस है इस दर में। जी। और फिर बाबुल हवाई जी, बाबुल हवाई से जी बस। आंटी आप तकरीबन 30-35 साल से आ रही हैं? जी हाँ, बराबर। तो माशाल्लाह से आपने कोई ख़ास वाक़या जो आपने कोई ख़ास ऐसी दुआ जो मतलब आपने की हो? मैंने हमेशा नोट नहीं करी है कि दुआ, देखें ना, दुआ तो आपके दिल में है। और मैंने हमेशा कोई किसी अलम पे लग के खड़े होके, जैसे लोग करते हैं कि तस्बीह खड़े होके पढ़े जा रहे हैं, मैं यहाँ से भी दिल में नियत करूँगी तो मेरे इमाम सुनने वाले हैं और मुराद जी बस। तो मुराद मौला आपकी तमाम हाजात पूरी करें और आप इसी तरह आती रहें और आपको सेहत व सलामती अता हो। जी नाज़रीन, इस वक्त मुसलसल लोग अपनी बता रहे हैं कि हम कब से आ रहे हैं और ये वो ख़ास बारगाह है कि जहाँ पर जो भी आता है अपनी तमाम हाजात पूरी करा कर जाता है। आइए चलते हैं अंदर और ज़ियारत करते हैं। लोगों से बातचीत तो काफ़ी हुई और मज़ीद बातचीत करते हैं, लोगों से जानते हैं कि वो इस बारगाह के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ ये वो ख़ास बारगाह है जहाँ पर दिली सुकून है, इत्मीनान है और अगर आप आते हैं तो आपकी तमाम हाजात जो हैं वो मुसलसल पूरी होती हैं और कोई दुआ ऐसी नहीं है जो रद्द हो जाए। तो ये ख़ास वो बारगाह है जो इंसान यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। मेरा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिलीव है क्योंकि मैं मुसलसल 12 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ और जो मेरा माशाल्लाह से दिन है बुध का, वो लकी है। जो मेरे रुके हुए काम हैं वो यहाँ से पूरे होते हैं और यहाँ पर 2 रकअत नमाज है जो कि आप पढ़ते हैं बुध की बारगाह में, इमाम मूसा काज़िम को हदिया करते हैं और उस 2 रकअत नमाज में अलहम्द के बाद 12 दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी होती है। ये ख़ास 2 रकअत नमाज है जो कि इमाम मूसा काज़िम को आप हदिया करें, साथ दुरूद की तस्बीह और यहाँ पढ़ें या सैयदी या मौला या मूसा इब्न जाफ़र बाबुल हवाइज अदरिकिनी अदरिकिनी अदरिकिनी। ये ख़ास तस्बीह है, ये ख़ास मुजरब अमल है जो आपको आपकी तमाम मुश्किलों से दूर ले जाता है और आप हर तरह की परेशानियों से महफूज हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ ख़ावर रज़ा नक़वी, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। जी नाज़रीन, लोग अपने मुसलसल यहाँ पर मौज़ाती सिलसिले बता रहे हैं और हम आगे चलते हैं अंदर और यहाँ पर अंदर चल के ज़ियारत करते हैं। ये वो ख़ास बारगाह है कि आने वालों की तमाम हाजात को पूरा करती है और कोई खाली हाथ नहीं जाता। या सैयदी या मौलाई या मूसी काज़िम या बाबुल हवाइज मेरे या मूसी काज़िम, आए हैं दर पे आपके हम बन के सवाली, आए हैं दर पे आपके बन के सवाली। या सैयदी या मौलाई या मूसी काज़िम या बाबुल हवाइज मेरे या मूसी काज़िम, आए हैं दर पे आपके हम बन के सवाली, आए हैं दर पे आपके हम बन के सवाली, है सबको यकीन कोई भी फेरा नहीं खाली। या सैयदी या मौलाई या मूसी काज़िम या बाबुल हवाइज मेरे या मूसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद नवाब हूँ और अहले सुन्नत से हूँ और ये कोई बात नहीं है कि आप अहले तशय्युन या अहले सुन्नत हैं। कुछ मराकिज़ और कुछ परवरदिगार ने मुक़द्दस जगहें ऐसी रखी हैं कि वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ 93 से आ रहा हूँ और ये जो
जगह है जिसको बुधवारे का नाम दिया गया है कि बुध के दिन ही मखसूसी है। यहाँ बशारत हुई थी और लोग यहाँ आते हैं। और मेरी ख़ुद भी एक मन्नत थी कि मेरी बहन थी, उनकी यहाँ जो पहली औलाद हुई तो वो मुर्दा हुई। उसके बाद फिर मुझे किसी ने कहा कि यहाँ मन्नत माने। आप यकीन कीजिएगा 7वां बुध था और मैंने तस्बीह पढ़ी और दुआ की परवरदिगार के हुजूर के, परवरदिगार या अल्लाह या रहमान और रहीम, अपने इन मकबूल बंदों के सदक़े में यहाँ के मैंने दुआ की। तो 7वां बुध था और मैं घर पहुँचा हूँ 7वें बुध। तो मेरे बहनोई खुशखबरी लेके आए कि भाई मुबारक हो और तुम्हारे यहाँ तुम मामू बन गए और बेटा हुआ है माशाल्लाह। तो बस वो दिन है जनाब आली। और ये इसके अलावा भी यहाँ मैंने और भी देखे हैं, अपने अहले सुन्नत भाइयों को देखा है माशाल्लाह। और इसमें कोई वो नहीं है, इम्तियाज़ नहीं है। और तमाम लोग जाते हैं, जिस तरह के हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पे दानिश फरबा शंकर कनेरिया टेस्ट प्लेयर हैं, उनकी पूरी फैमिली वहाँ जाती रही है, लोग अभी भी जाते हैं। तो इसको इस निगाह से नहीं देखना चाहिए। ये जितने भी मुक़द्दस मकामात हैं यहाँ लोग आते हैं, अपनी मुरादें मानते हैं, तभी तो आते हैं वो, अब वरना यहाँ क्यों आए। और इतने अरसे से यहाँ आ रहे हैं। एक ज़माना है और बीबी जॉन थी, उन्होंने ये काम किया था, परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद करे। और आजकल जो इसके इंतज़ाम देख रहे हैं उनकी भी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा हो। बड़े बड़े मैंने लोगों को यहाँ देखा है, उलमाए कराम को देखा है, वो यहाँ आते रहे माशाल्लाह। और हम आज भी यहाँ जब भी मौका मिलता है तो यहाँ आते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमको ये साथ करें। अब जब भी मौका मिलता है कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आएँ और यहाँ आके एक सुकून मिलता है जनाब आली। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बुध की बारगाह के उस जगह पर जहाँ पर नमाज़ें अदा की जाती हैं। ये 2 रकअत नमाज अदा की जाती है और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को हदिया की जाती है। या सैयदी या मौला या मूसा इब्न बाबुल हवाई चित्र की ये तस्बीह पढ़ी जाती है। और ये वो ख़ास तस्बीह है जो आपके तमाम हाजात को पूरा करती है। आइए हम इस बारगाह की ज़ियारत करते हैं। आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। या सैयदी या मौला। इस 2 रकअत नमाज में अलम के बाद 12 दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी जाती है और फिर आप अपनी नमाज को तमाम करते हैं। मूसी काज़िम हम वास्ता देते हैं शहे करबो बला का, हम वास्ता देते हैं शहे करबो बला का और ज़ैनब कुलसूम। हाँ, बड़ी तादाद में लोग इस वक्त बुध की बारगाह की तरफ रुख करते हैं और ये ख़ास टाइम है जिस वक्त रश बढ़ता चला जाता है और रात देर तक यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते हैं। आप इस वक्त ज़ियारत कर रहे हैं, ख़ास उस दर की बुध की बारगाह में मौजूद हैं। आप हमारी दुआ में शामिल हैं। कवे सजाद रो रो के मैं मरे जांदा नशामादा ऊना अठारा दस्तारा तो एक चादर दा गम बदिए ऊना अठारा दस्तारा तो एक चादर दा गम बदिए इसिक चादर दे बदले मेरा सर जांदा नशामादा कवे सजाद रो रो के मैं मरे जांदा नशामादा।